આપણું પરમ સૌભાગ્ય કે આજે આપણું માર્ગદર્શન કરવા પધાર્યા છે ગુજરાત રાજ્યના માનનીય રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, પદ્મશ્રી સુભાષ પાલેકરજી અને ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. ઈશાવાસ્યમિદમ સર્વમ યત્કિંચ જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન ભૂંજિથા મા ગૃધ કશ્યસ્વીદ્વનમ. ઈશાવાસ્યોપનિષદનો આ શ્લોક એવું કહે છે કે આખી પૃથ્વીનો જો પ્રલય થઈ જાય, પણ આ શ્લોક જો આપણે આપણા હૃદયમાં ઉતારીએ તો પુનઃ આપણે નિર્માણ કરી શકીશું. કેમ કે આ પૃથ્વી પર જે કાંઈ પણ છે, હવા, પાણી, જમીન, એ બધું જ આપણને વારસામાં મળેલું છે અને આપણે વાપરીને એનો સમુચિત ઉપયોગ કરીને આપણી આવનારી પેઢીને વારસામાં આપી જવાનું છે. એના પર આપણો હક નથી. આપણે એનું જતન સંવર્ધન કરીને આપણી આવનારી પેઢી માટે એનો સમુચિત ઉપયોગ કરવાનો છે. અને કૃષિ પણ એ જ દિશામાં આગળ વધી રહી છે. જમીનનું સત્વ અને તત્વ જળવાય અને પ્રાકૃતિક કૃષિ થકી આપણી આવનારી પેઢી સમૃદ્ધ બને, સ્વસ્થ, સ્વચ્છ અને નિરોગી બને, એ આપણું ધ્યેય છે. मेरे किसान के लिए, मेरे देशवासियों के लिए ये धरती हमारी मां है. भारत माता की जय बोलते ही हमारे भीतर ऊर्जा का संचार होता है. वंदे मातरम बोलते ही इस धरती मां के लिए खप जाने की प्रेरणा मिलती है. एक दीर्घकालीन इतिहास हमारे सामने आता है. लेकिन क्या कभी हमने इस धरती मां के स्वास्थ्य की चिंता की है? प्राकृतिक खेती, प्रकृति तरफ प्रयाण. કુદરતે કૃષિ સંસ્કૃતિમાં એક સંકલિત શૃંખલા અને ઇકોસિસ્ટમની રચના કરી છે. ખેતીના તમામ તબક્કાઓમાં પ્રકૃતિ સાથેનું સંયોજન તેમજ રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશક દવાઓ પાછળ કરવામાં આવતા ખર્ચમાંથી મુક્તિ એટલે પ્રાકૃતિક ખેતી. આવો આપણે સૌ પ્રાકૃતિક ખેતી અપનાવી પ્રકૃતિ તરફ પ્રયાણ કરીએ. રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશક દવાઓનો ખર્ચ શૂન્ય, ખૂબ ઓછા પાણીની જરૂરિયાત, ખેડૂતોને કોઈ વસ્તુ બહારથી લેવાની જરૂર નહીં, ખેતી ખર્ચ નહિવત. પ્રાકૃતિક ખેતીમાં જમીનમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં અળસિયા આવે છે, તે જમીનને છિદ્રાળુ કરે છે. પ્રાકૃતિક ખેત પેદાશ રાસાયણિક અવશેષો મુક્ત હોવાથી બજારમાં સારા ભાવો મળી રહે, પર્યાવરણની જાળવણી અને સંવર્ધન થાય. ઓછો ખર્ચ, વધુ ઉત્પાદન, યોગ્ય કિંમત મળતા ખેડૂતોની આવકમાં વધારો થાય. ખેડૂતો ગાય પાળતા થશે, જેથી ગાયનું પાલન પોષણ થશે, લોકોના આરોગ્યમાં સુધારો થશે. ખેડૂતોને કોઈ વસ્તુ બહારથી લેવી ના પડે, આમ ખર્ચ વગરની ખેતી થઈ શકે. પ્રાકૃતિક ખેતીના મુખ્ય 4 સિદ્ધાંતો: બીજામૃત, બીજ સંસ્કાર દ્વારા બીજનું સુરક્ષા કવચ. આચ્છાદન, વધારે હ્યુમસ આપે વધારે ફળદ્રુપતા. જીવામૃત, ગાયના ગોબરના ઉપયોગથી જીવાણુઓનું જતન. વાપસા, છોડને પાણીની નહીં પણ ભેજની જરૂર. હિમાસ્ત્ર, અગ્નિ અસ્ત્ર, બ્રહ્માસ્ત્ર, દશપર્ણી અર્ક દ્વારા રોગ અને જીવાતનું પણ આસાનીથી નિયંત્રણ કરી શકાય છે. हम जिस प्रकार से केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, हम हमारी इस धरती मां को तबाह कर रहे हैं. इस मां के संतान के रूप में, एक किसान के रूप में मुझे मेरी धरती मां को तबाह करने का हक नहीं है. ખેડૂતના આંગણે એક દેશી ગાય રાખીએ અને તેના ગૌમૂત્ર સાથે શેઠે પાળે થતી વનસ્પતિનો ઉપયોગ ખેતીમાં કરીએ. ચાલો આપણે સૌ પ્રાકૃતિક खेती કરીએ અને ગ્રામ ઉત્થાન થકી રાષ્ટ્રનું નિર્માણ કરીએ. एक समय था जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था. घी दूध की नदियां बहती थी, ऐसा भी हमने पुरखों से सुना है. पर समय के चलते विपुल कृषि उत्पादन लेने के हमारे मनोरथ में और उसकी दौड़ में हम प्राकृतिक कृषि से विमुख होते चले और अब फिर समय आ गया है बैक टू नेचर,
प्राकृतिक कृषि की ओर बढ़ने का। और अब आदर से आमंत्रित करते हैं आज की इस कार्यशाला के प्रेरणा स्रोत और गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल श्रीमान आचार्य देवव्रत जी को कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। ओम असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय भाई रूपाणी जी, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, केंद्र में कृषि मंत्री माननीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव कुमार जी, सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के जनक पद्मश्री सुभाष पालेकर जी, माननीय श्री आर.सी. फल्दू जी कृषि मंत्री प्रदेश, श्री जयद्रथ सिंह जी परमार, सांसदगण, मंत्री परिषद के सभी माननीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण, कृषि विभाग से जुड़े हुए मेरे सभी बंधुगण, बहुत बड़ी संख्या में आज किसान बंधु और बहनें यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों महानुभावों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जैसा अभी पटेल साहब ने बताया कि गुजरात में आने से पहले हिमाचल प्रदेश में 4 वर्ष राज्यपाल के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के इस देश की प्रगति के लिए कुछ बिंदु हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, जल रक्षण, पर्यावरण बचाना, इस दिशा में अनेक कार्यक्रम में करता रहा। लेकिन उसमें सर्वाधिक यदि मैंने शक्ति लगाई तो वो सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि की दिशा में वहाँ काम किया। और परिणाम क्या हुआ कि जिस प्रकार से आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हिमाचल प्रदेश की भी पूरी सरकार वहाँ पर बैठी, पालेकर जी को आमंत्रित किया। अपना प्रदेश गुजरात बहुत बड़ा है, यहाँ का सिस्टम विशाल है। इतनी बड़ी तो बैठक मैं समझता हूँ भारत में शायद कहीं ना हुई हो। जितना बड़ा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से उप मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों ने इतनी उदारता के साथ गुजरात के प्रदेश के किसानों की उन्नति के लिए, सबकी भलाई के लिए जो सोचा, ये मैं अभूतपूर्व कार्य मानता हूँ। भाइयों और बहनों, इस प्रकार का आयोजन हमने छोटे रूप में हिमाचल प्रदेश में किया। परिणाम क्या हुआ कि उस दिन के पहले ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम इस पद्धति को पूरे प्रदेश के किसानों में पहुंचाना चाहते हैं
और उनका बजट सत्र आने ही वाला था। 25 करोड़ रुपया उन्होंने इस पद्धति को प्रचारित करने के लिए निर्धारित कर दिया और हमने एक विभाग अलग स्थापित, स्वतंत्र विभाग स्थापित किया जिसमें कुछ अधिकारी निश्चित किए, जिनमें से एक अधिकारी आज भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, जिनका दोपहर की कार्यशाला में पहला ही वक्तव्य होगा। आप उसको ज़रूर सुने कि हिमाचल प्रदेश में हमने लक्ष्य लिया था, पहले वर्ष हम 500 किसानों को तैयार करेंगे जो पालेकर प्राकृतिक कृषि को करेंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, पहले ही साल आज जो अधिकारी आए, श्री राजेश्वर चंदेल जो प्रोफेसर हैं हमारी नोनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, ऐसे साइंटिस्ट लोग हमारे मिशन से जुड़े। 500 किसानों को हमने जोड़ने का लक्ष्य लिया। पहले ही साल 10,000 किसान हमारे साथ में जुड़े। पहले ही वर्ष इतनी गति से काम कैसे बढ़ा और क्या क्या परिणाम इस पद्धति से लोगों के उसमें आए, कितना लोगों का भला किसानों का उसमें हुआ, ये विषय डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जो हिमाचल से चल करके हमारे आग्रह पे आए हैं, वो अपनी बात आपके बीच में रखेंगे। तो मैं सर्वप्रथम प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के सभी अधिकारियों का और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज आए हैं उनका भी अभिनंदन और बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है लेकिन इस विषय को समझने की भी ज़रूरत है। पालेकर जी ने बड़े विस्तार से जानकारी दी। मैं स्वयं एक गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक गुरुकुल है जिसमें 1,500 19 स्टेट्स के बच्चे पढ़ते हैं। वो बड़ा आधुनिक प्राचीन दोनों का सामंजस्य है। उसमें 35 वर्ष तक मैं प्रधानाचार्य रहा। मेरे पास वहाँ 200 एकड़ जमीन का एक फार्म है, 300 गायें हैं। तो मैं अपने खेत में 35 साल, मेरे से भी पहले उस खेत में रासायनिक खेती होती रही और धीरे धीरे हमारी लागत बढ़ती चली गई, उत्पादन कम होता चला गया और हमने इसके दुष्परिणाम भी अनुभव किए, क्योंकि रासायनिक खेती से पर्यावरण बिगड़ता है, पानी की खपत बढ़ती है, लागत भी बढ़ती है, खाने वालों का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो इस सोच को लेकर मैं जैविक कृषि की ओर बढ़ा। अभी मंच पे बैठे हुए माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई पटेल जी ने एक बात कही, इसको आप भी समझें। उन्होंने कहा ये जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसको तो सब लोग समझते हैं, लेकिन ये जो प्राकृतिक खेती जो पालेकर जी की विधि है, इसको अभी लोग नहीं जानते। ये सही बात है। मैं इसका अंतर आपके बीच में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जैविक खेती भी 5 साल की है। पहले रासायनिक खेती करता रहा, उसके बाद अपने 200 एकड़ के फार्म पे मैंने 5 साल तक जैविक खेती भी की है। अब ये जैविक खेती क्या है, इसको समझिए बड़े ध्यान से। हाँ, ऑर्गेनिक, जैविक ऑर्गेनिक खेती जिसको आप बोलते हैं, मूल रूप से ये भारत की पद्धति नहीं है। डॉक्टर एल्बर्ट हावर्ड जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, वो भारत में 1931 में अपनी पत्नी के साथ आए और उन्होंने भारत में आकर
ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रचार करना शुरू किया। लेकिन जब वो देश में भ्रमण किया तो उन्होंने पाया कि यहाँ के लोग तो प्राकृतिक खेती में पहले ही बड़े पहुँचे हुए हैं, ऑर्गेनिक यहाँ पर करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोगों को इसका प्रचार करके वो चले गए और ज़्यादा आगे अपना प्रचार वो इस देश में नहीं बढ़ा पाए। मूल रूप से ऑर्गेनिक ये भारत की मूल पद्धति नहीं है, नंबर एक। दूसरा, ये है पद्धति क्या? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है, हरियाणा में। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है, पंजाब में। वहाँ दोनों अपनी किसानों को सिफारिशें नाम से पुस्तिकाएं निकालते हैं, निर्देश पुस्तिका। उसमें उन्होंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट दी कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें सबसे बड़ा योगदान करती हैं, गेहूं और धान, चावल। और इन दोनों फसलों को उगाने के लिए किसान को 1 एकड़ फसल के लिए 60 किलो नाइट्रोजन डालने की जरूरत पड़ती है। यानी कि 1 एकड़ में गेहूं धान की फसल यदि आपने उगानी है तो कम से कम 60 किलो नाइट्रोजन 1 एकड़ फसल को चाहिए। और जैविक ऑर्गेनिक में गोबर की खाद के द्वारा जो करनी हो तो 1 टन गोबर की खाद में 2 केजी नाइट्रोजन है। ध्यान करिए, 10 टन गोबर, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। तो 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ में पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। समझ में आई बात? 1 एकड़ में यदि गोबर की खाद से 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है तो 300 क्विंटल गोबर की खाद चाहिए। अब 300 क्विंटल गोबर की खाद के लिए 10-15 पशु चाहिए। एकड़ 15 पशु कैसे पलेंगे और परिवार के लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने इसका अल्टरनेट दिया कृषि वैज्ञानिकों ने। यदि आप 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो 150 क्विंटल केचुआ की खाद, हलसिया की खाद डाल सकते हो, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो। अब 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट भी कितने दिन में तैयार होगा? कितना गोबर उसमें चाहिए? भारत का इतना बड़ा भूखंड धरती का है, इतना गोबर की खाद हम डाल करके नाइट्रोजन की पूर्ति करना चाहेंगे तो इतना पशुधन हमारे पास में नहीं है। 2, तीसरा, जब इतनी गोबर की खाद धरती पे पड़ती है तो उसमें मीथेन जैसी गैसें पैदा होकर पर्यावरण को बिगाड़ने का काम करती हैं। और उसमें जो केचुआ, हलसिया छोड़ा जाता गोबर की खाद में, वो भारत का केचुआ नहीं है, वो हमारा हलसिया नहीं है, वो आयात किया हुआ हलसिया है। वो एक निश्चित टेम्परेचर से ज़्यादा सहन नहीं करता, वो केवल गोबर खाता है, मिट्टी नहीं खाता, अपने शरीर में अनेक हैवी मेटल तैयार करके फसल को देता है जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं है। 3 बात। नंबर 4, ऑर्गेनिक खेती में पहले 3 साल उत्पादन घटेगा, आपका उत्पादन पूरा हो ही नहीं सकता। तो यदि 3 साल हमारा उत्पादन घट गया तो किसान का गुजारा कैसे चलेगा? लोगों का हम पेट कैसे भरेंगे? तो इस प्रकार के अनेक दोष उसमें हैं। 5वां, ऑर्गेनिक फार्मिंग में खरपतवार खेत में ज़्यादा बढ़ता है। मैंने 5 साल
ऑर्गेनिक खेती को अपने खेत में प्रैक्टिकल किया, उसकी लागत कम हुई नहीं, उत्पादन मेरा घट गया और झंझट उसमें ज़्यादा करना पड़ता है। पिट बनाओ, उसमें गोबर डालो, उसमें वो हलसिया छोड़ो, फिर उसको छानो, फिर उसको डालो, तो उसमें लेबर भी बढ़ती है। अगली अंतिम बात, इस समय ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बाजार में आ गए हैं। कुछ कंपनियां इस क्षेत्र में उतर गई हैं और वो प्रोडक्ट तैयार करके किसानों को बेचते हैं, फिर किसान उनका उपयोग करते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रासायनिक खेती किसान करता है, यूरिया खरीदता तो जेब से पैसा गया, डीएपी खरीदता तो किसान की जेब से पैसा गया, पेस्टिसाइड खरीदता तो किसान की जेब से पैसा गया। अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट किसान खरीदता तो भी किसान की जेब से पैसा गया। किसान की लूट कहाँ बंद हुई? वो तो उधर भी चल रही थी, इधर भी शुरू है। हमें ऐसा रास्ता चाहिए कि गांव का पैसा गांव में, शहर का पैसा भी गांव में, और भारत का किसान समृद्ध हो। ये रास्ता है जो सुभाष पालेकर की विधि में। अब मोटे मोटे आप इस दोनों पद्धतियों का अंतर समझ गए होंगे। ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और रासायनिक खेती आप कर ही रहे हैं, उसके परिणाम आपके सामने हैं। रासायनिक खेती जब हमने प्रारंभ की 60 साल पहले, तो 1 एकड़ में 20-30 किलो यूरिया डीएपी डालना होता था, उत्पादन हमारा बढ़ता था। थोड़ा खाद डालते थे, उत्पादन बहुत होता था। लेकिन अब क्या हो गया? खाद की मात्रा बढ़ती जा रही है और उत्पादन की मात्रा, बोलो, घटती जा रही है। लागत बढ़ती गई, उत्पादन घटता गया, किसान कर्जाई हो गया। परिणाम स्वरूप आज किसान आत्महत्या की ओर बढ़ता है। तो ये पद्धति जो रासायनिक है, इससे जमीन की उर्वरा शक्ति हमारी कम होती जा रही है, क्योंकि जो मित्र जीव थे वो सब इसने मार दिए हैं। जो पशु पक्षी थे, किसान की मदद करते थे, वो भारी मात्रा में मर गए। 10,000 जीव जंतुओं की प्रजातियां, वैज्ञानिक लोगों की रिपोर्ट है, धरती से नष्ट होने के कगार पे। ऐसी स्थिति में हम चले गए। तो मैं जो चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं, वो टोटल मैंने अपने खेत में जो प्रैक्टिकल किया वो कर रहा हूं। मेरे खेत में ये भाषण देने के लिए मैंने भाषण तैयार नहीं किया, उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसका आनंद मिलेगा कि ये पद्धति कितनी चमत्कारी है। सुभाष पालेकर जी की जो विधि है वो एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती पे आधारित है। ऑर्गेनिक 30 गाय से 1 एकड़ की खेती, और इनसे 1 गाय से 30 एकड़ की खेती। इसका मोटा मोटा तरीका कैसे भाई, 1 गाय से 30 एकड़ की खेती कैसे हो सकती है, इसको सुनो ध्यान से। इस पद्धति में क्या करते हैं, प्लास्टिक का एक ड्रम ले लें 200 लीटर का, उसमें लगभग 180 लीटर पानी भर दें। देसी गाय 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है, वो उस ड्रम में डाल दो। 1.5 से 2 किलो गुड़ वो किसान पैदा करता है। 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन वो भी किसान पैदा करता है। बड़े पेड़ के नीचे की 1 मुट्ठी मिट्टी खेत की क्यों नहीं, क्योंकि खेत वाली में आपने यूरिया डीएपी डाल के जीवाणु नष्ट कर दिए, उसको नहीं लेना। बड़े पेड़ के नीचे, क्योंकि यूरिया डीएपी नहीं पड़ा तो उसमें जीवाणुओं का भंडार है, वो उसमें डाल दें। बस इतनी चीज आपने उस ड्रम में डालनी है। लकड़ी का एक डंडा लो, घड़ी की सुई की तरह, 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 4 दिन घोलना आपने। 1 एकड़ का खाद तैयार हो गया।
1 एकड़ का। दुनिया में 4 दिन में तैयार होने वाला इससे सरल तरीका खाद का कोई नहीं है। तो ध्यान करो, अब आप 1 दिन के गोबर गौमूत्र से 1 एकड़ का खाद तैयार है, तो 30 दिन के गोबर गौमूत्र से कितने एकड़ का तैयार है? 30 दिन का तैयार है। गाय ने दूध भले ही ना दे, गोबर गौमूत्र तो रोज देगी, तो 12 महीने इतने खाद की इस तरल पदार्थ की, जीवामृत इसको बोलते हैं, इतने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भी बच जाता है। लेकिन ये क्वालिटी केवल देसी गाय में है। पालेकर जी ने और मैंने भी लैब में टेस्ट करवाया, गाय का, गधे का, घोड़े का, बकरी का, भैंस का, सब गोबर टेस्ट कराए। अंग्रेजी गाय का भी करवाया, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी, उनमें ये क्वालिटी नहीं है। ये क्वालिटी केवल भारतीय नस्ल की देसी गायों में है, और सभी देसी गायों में, एक में नहीं, सभी जितनी भारतीय नस्ल की गाय, देसी गाय जो दूध देती है उसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ तक जीवाणु हैं। 1 ग्राम गोबर में, तो 10 किलो गोबर में कितने करोड़ों अरबों होंगे, अनुमान लगाओ। इधर मिट्टी में जीवाणु हैं, और इनमें जो बेसन डालते हैं वो प्रोटीन उन जीवाणुओं को मिलता है। गुड़ डालते हैं तो वो बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो उनकी संख्या की कोई गिनती नहीं है। अभी माननीय पालेकर जी ने अपने भाषण में कहा कि खाद नहीं, जीवाणुओं का खेल है। जो जीवाणु पौधे की जड़ पर पौधे के लिए भोजन तैयार करते हैं, ये काम जीवाणु करता है। और जीवाणु का भंडार इस पद्धति के जीवामृत में है। ऐसे ही घन जीवामृत भी हम बनाते हैं, जो खुश खाद है, बिल्कुल ऐसा ही है। 100 किलो सूखी खाद ले लो, उसमें यही चीज आपने 3 चीज डालनी है, एक गोमूत्र, और उसमें बेसन, गुड़, और 1 मुट्ठी मिट्टी। ये हमारा जो खाद है ये ठोस खाद है। ये 6 महीने तक रख सकते हैं किसान। जब खेत में पानी दें उस समय इसको खाद की तरह बीज के बो करके फिर पानी दे सकते हैं। तो ये पद्धति क्रांतिकारी है। कैसे है, इसके 2-1 उदाहरण दूंगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। आप सवेरे से बैठे हैं, लेकिन वो सुनने वाले हैं। खाद की वाकई जिस ढंग से हम डालते हैं इसकी जरूरत नहीं है, जीवाणुओं की जरूरत है, जो पौधे की जड़ में भोजन का निर्माण करते हैं। और ये पद्धति जीवामृत, घन जीवामृत से बढ़िया कोई पद्धति दूसरी हो नहीं सकती। आप इसको खेत में अनुभव करेंगे। अब मैं पिछले 8 साल से अपने 200 एकड़ खेत में केवल पालेकर जी की विधि को अपनाए हुए हूँ, और उस पद्धति के द्वारा मेरा उत्पादन कितना बढ़ गया वो आप सबको भी मैं आह्वान करता हूँ। कभी हरियाणा जाने का मौका मिले तो आप उन खेतों को जाके देख सकते हैं। हमारे मंच पर आदरणीय रूपाला साहब उपस्थित हैं, केंद्र में कृषि राज्य मंत्री हैं। इन्होंने कृपा की थी, एक बार ये खेत में जाके आए। हमारा 1 रुपये का खर्चा बाजारी नहीं है। ये सब चीज हम अपने खेत में तैयार करते हैं। गन्ना खेत में गुड़ तैयार हो जाता है, दालें हम बीजते हैं, बेसन तैयार हो जाता है। गाय हमारे घर पे हैं। बाजार से 1 रुपये का भी सामान हम अपनी खेती करने के लिए प्रयोग नहीं करते, और 200 एकड़ की खेती वहां पर करते हैं। और जो रासायनिक खेती करते हैं उनसे ज्यादा उत्पादन हम लेते हैं, उनसे ज्यादा उत्पादन हम लेते हैं। और ये सबके सामने है, सब देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना सबके लिए। इसी से आपको जानकारी मिलेगी कि कितना चमत्कारी ये खेती है। मेरे पास 150 एकड़ जमीन है। मेरे खेत के बराबर में एक गांव है,
उस गांव के लोगों पे धरती जमीन थोड़ी है, तो वो मेरे पास आए 30 साल पहले। उन्होंने कहा कि जी आप लोगों पे तो जमीन ज़्यादा है, 50 एकड़ हम किसानों को भी दे दो लीज पे, हम इसका किराया देंगे, हमारे भी पशुओं का और बच्चों का भला हो जाएगा। तो मैंने 50 एकड़ जमीन उस गांव के किसानों को 10-15 किसानों में 2-2, 4-4 एकड़ उन्होंने ले ली वो जमीन। 30 साल वो खेती करते रहे। अभी 2 साल पहले मेरे पास वो चल के आए और उन्होंने कहा अब हम आपका खेत नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे जी? कि इसमें कुछ नहीं होता, ये तो बंजर है। मैंने कहा जब आपने खेत मेरे से लिया था तब बंजर था कि नहीं? जब तो बहुत पैदा होता था, जब तो बहुत पैदावार होती थी, लेकिन अब कुछ नहीं पैदा होता, हमें उससे कोई लाभ नहीं, आप अपना खेत पकड़ो। ये सुनने वाली बात है। अब मैंने कृषि वैज्ञानिक बुलाए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के, जिसका नाम डॉक्टर हरिओम है, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के मुखिया, उनको मैंने बुलाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, इन किसानों ने मेरी ज़मीन छोड़ दी और ये कह कर के छोड़ी इसमें कुछ नहीं पैदा होता, ये बंजर है, अब मैं इसका क्या करूं? तो डॉक्टर हरिओम ने कहा ऐसे पता नहीं लगेगा ज़मीन बंजर है या उपजाऊ है। मैं इसके मिट्टी के सैंपल लूँगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में भेजूँगा, वहाँ से रिपोर्ट आएगी मिट्टी की गुणवत्ता की तो पता लगेगा। उन्होंने ऐसा ही किया। 50 एकड़ में प्रत्येक एकड़ के एक इस कोने से एक दूसरे कोने से उन्होंने 100 सैंपल मिट्टी के भरे और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की लेबोरेटरी में भेज दिए। 1.5 महीना के बाद वहां से रिपोर्ट आई कि इस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3-0.4 है। अब मैं कोई साइंटिस्ट तो हूं नहीं, आप किसानों को भी इस बात का नहीं पता होगा। तो मैंने पूछा जी ये 0.3-0.4 का मतलब क्या है? तो डॉक्टर हरिओम जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सीनियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा ये किसान बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये जमीन बंजर है, इसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा, ये उन्होंने बोला। मैंने कहा अब मैं क्या करूं? तो डॉक्टर हरिओम जी ने कागज लेकर पेन लेकर एक लिस्ट बनाई, इतना यूरिया, इतना डीएपी, इतना फास्फोरस, इतना जिंक, इतना पोटास, इतना फलाना। मैंने कहा डॉक्टर साहब इन्हीं ने तो वह बंजर किया, फिर यही लिस्ट बना रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इसमें एक काम और करना पड़ेगा, जब आप फसल काटोगे तो इसके अवशेष जो है ना वो इसी में काटने पड़ेंगे। जैसे धीरे धीरे 30 साल में ये बंजर बनी है, ऐसे धीरे धीरे 20 साल में ये उपजाऊ बनेगी। ये मेरे सामने प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब ने रख दिया, इसका कोई तरीका नहीं। मैंने कहा मैं ये खेती नहीं करूँगा, मैं पालेकर जी की विधि को इसमें करूँगा। तो उन्होंने उत्तर पता क्या दिया मेरे को कि साइंटिस्ट मैं हूँ कि आप हो? मैं कहा साइंटिस्ट तो आप ही हैं, मैं तो खेती करने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि 150 एकड़ में मैं पालेकर जी की विधि से खेती कर रहा हूँ और मेरा उत्पादन पूरा होता है तो मैं तो वही करूँगा। तो उस डॉक्टर ने मेरे को चैलेंज किया, कृषि वैज्ञानिक ने, आचार्य जी यदि इस बंजर भूमि में आप कुछ भी पैदा कर पाए तो भारत देश की किसी भी भूमि में कुछ भी पैदा हो सकता है। ये बंजर है, आप अपनी मत चलाओ, हमारी मानो, हमारी मानो। तो मैंने कहा जो लिस्ट आपने बनाई है, बंजर तभी तो हुई जब मैंने किसानों को जमीन दी थी तो मेरा पूरा 200 एकड़ का फार्म एक जैसा था, सारी जमीन उपजाऊ थी। उन किसानों ने क्या काम किया, वो लीज पे लेते थे, यूरिया डीएपी, गाय भैंस का गोबर दिखाया नहीं, कोई अवशेष दिखाए नहीं,
और धीरे धीरे जमीन बंजर बन गई। किसान भाइयों, अब ये बात मैंने प्रैक्टिकल मेरे खेत की आप जाके देख सकते हैं। यानी कि निरंतर रासायनिक खेती करने से मेरा 50 एकड़ जमीन 30 साल में पूर्ण बंजर बन गई। किसानों ने बोने से ना कर दिया। अब मैंने क्या किया, उस साइंटिस्ट की बात नहीं मानी और मैंने जीवामृत और घन जीवामृत, ये फरवरी महीने 2 साल पहले उन्होंने मेरा खेत छोड़ दिया। 15 जून को मैंने उसमें धान बीज दिए और जीवामृत डाला और घन जीवामृत जो पालेकर जी विधि बताते हैं। मेरा खेत लहला गया, एकदम लहराने लगा। मैंने कृषि वैज्ञानिक हरिओम जी को खेत में बुलाया और वो खेत दिखाए। मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये वही खेत है ना जहाँ की मिट्टी आपने जांच के लिए भेजी थी? उन्होंने कहा, धरती तो वही है। अब धरती तो सरकती नहीं, वो तो हिलती नहीं। उन्होंने कहा, खेत तो वही, लेकिन ये चमत्कार कैसे है? मैंने कहा, ये चमत्कार जीवामृत और घन जीवामृत का। ये एक गाय से 23 एकड़ की खेती है। वो कृषि वैज्ञानिक हिल गए और मेरे को कहने लगे कि मेरी पढ़ाई में ये चमत्कार मैं पहली बार देख रहा हूं। और उन्होंने कहा कि हर 15 दिन बाद मैं आपके खेत देखने आऊंगा। हर 15 दिन बाद वो आते रहे और उन्होंने कहा, जब ये धान की आप हार्वेस्टिंग करो, कटाई करो, मैं इन धानों को तुलते हुए देखना चाहता हूं। हमने उनको बुलाया, धान काटे गए। जब तोलने लगे तो हमारा पहले ही साल बंजर जमीन में 20-25 क्विंटल, 20 से 25 क्विंटल, 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ धान की पैदावार हुई। पहले ही साल में इतनी पैदावार हुई, जिसको वो बंजर बता रहे थे। उसके बाद उन साइंटिस्ट की इतनी रुचि पैदा हुई कि अब मेरे खेत को वही संभालते हैं, वही संभालते हैं। और उन्होंने अपना एक साथी डॉक्टर बलजीत सिंह सारन, जो इंटरनेशनल स्तर के साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के, वो अपने साथ जोड़े और अब वो मेरी मिट्टी के नमूने हर 6 महीने में जांच करते हैं। हर 6 महीने में जांच करते हैं। अब क्या किया उन्होंने, उसी खेत का 1 साल के बाद फिर मिट्टी परीक्षण करने के लिए यूनिवर्सिटी में भेजी। इसको सुनने वाली बात है। 1 साल के बाद जब मिट्टी मेरी दोबारा उन्हीं खेतों की यूनिवर्सिटी में गई और उसकी रिपोर्ट आई, तो उस जमीन का मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.8, 0.9 पे चला गया। ये रासायनिक खेती में कोई साइंटिस्ट इसको मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब मेरे खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन 1 तक चला गया है और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसका एक और उदाहरण, उन दोनों साइंटिस्ट ने एक दिन क्या काम किया, वो पड़ोस के वो किसान 5 लिए उन्होंने जो रासायनिक खेती करते हैं। 5 किसानों की 5 जगह से मिट्टी के सैंपल लिए और उन्होंने उस मिट्टी को इकट्ठा मिला दिया। 5 किसानों की मिट्टी को जो रासायनिक करते थे। फिर उसमें से 1 ग्राम मिट्टी निकाली उन्होंने और उस पर रिसर्च किया, तो 1 ग्राम मिट्टी में 30 लाख जीवाणु मिला जो रासायनिक खेती करते हैं 1 ग्राम मिट्टी में। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया, मेरे खेत की 5 जगह से मिट्टी के सैंपल लिए और फिर उस मिट्टी को इकट्ठा करके 1 ग्राम मिट्टी निकाली और उसमें जीवाणु पता कितने मिले, ध्यान से सुनना।
रासायनिक वाली में 1 ग्राम में मिले 30 लाख और मेरी मिट्टी में मिले 161 करोड़ जीवाणु, 161 करोड़। ये प्राकृतिक खेती का ये आश्चर्य है। तो मैं जो देख रहा हूँ, हमारा गेहूं, धान, चावल, सब्जियां और वहाँ हमने बाग के भी पेड़ लगाए हुए हैं, तो सब में अद्भुत है, अद्भुत है। अमरूद हमारा 2 सीजन में आता है हमारे खेत का। जब बारिश के दिन होते हैं तो अमरूद में कीड़ा बहुत लगता है, किसान जानते कि नहीं, कीड़ा बहुत आता अमरूद में, लेकिन हमारे खेत में एक भी कीड़ा नहीं होता। ये इस पद्धति का करिश्मा है। तो बहुत लंबी चर्चा यहाँ हो चुकी हैं। मैं आप सब किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप केवल इस प्राकृतिक खेती के एक लाभ को न लें। इससे कितने लाभ हैं, प्रैक्टिकल है। नंबर 1, इसका लाभ, आप आने वाली जनरेशन को उपजाऊ भूमि दे करके जाओगे। आने वाली जनरेशन को उपजाऊ भूमि दे करके जाओगे। और रासायनिक करोगे तो मेरी तरह 50 एकड़ को बंजर बना करके जाओगे। समझ में आई बात? 1 लाख। नंबर 2, पानी इस समय गंभीर समस्या बनी हुई है सारी दुनिया की। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो इस बार पानी का लिए एक अलग मंत्रालय बना दिया। इतनी चिंता उनको आने वाले पानी की देश के लोगों के लिए है और सारी दुनिया में दिक्कत है। हमारा धान पैदा करने के लिए हरियाणा, पंजाब में 1 किलो धान चावल पैदा करने के लिए 3000 लीटर पानी लगता है। 3000 लीटर। 1 किलो धान पैदा करने के लिए चावल, 3000 लीटर पानी। कैसे बचेगा पानी? 80-90% पानी की खपत हमारी सारी खेती में प्रयोग होती है। और आपने बचपन में देखा होगा, मेरे को कल ही आपके हमारे अधिकारी लोग बता रहे थे कि 20-30 साल पहले हम हाथ से बाल्टी भर के पानी पी लेते थे कुओं से। आज पानी पाताल में चला गया है, 250-300-400 फीट चला गया। गुजरात में ये स्थिति बन चुकी है, इतना पानी नीचे चला गया। इस पालेकर जी की विधि में पानी की खपत 0 की तरफ बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ी पानी की बचत आप करेंगे, ये पुण्य दूसरा आपको मिलेगा। तीसरा इसका पुण्य जो मिलने वाला है, पर्यावरण। पानी के बिना 10 दिन 15 दिन निकल सकते हैं, खाने के बिना महीना भी निकल सकता है, लेकिन हवा के बिना तो 3 मिनट में राम नाम सत हो जाती है। 3 ही मिनट में हो जाती है। तो आज पर्यावरण इतना बिगड़ चुका है, वायुमंडल, और उसके दुष्परिणाम, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, धरती का तापमान बढ़ रहा है, समुद्र लेवल बढ़ रहा है। दुनिया जो समुद्र के किनारे वो सब समुद्र में समाहित होने वाली है। इतने दुष्परिणाम इसके हैं। पर्यावरण को बिगाड़ने में रासायनिक खेती का सबसे बड़ा योगदान है। उदाहरण के लिए भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, याद है आप लोगों को, जिसमें 1 घंटे में 40,000 व्यक्ति मरे थे। वो जो गैस रिसाव हुआ था उसमें पेस्टिसाइड बनती थी जो आप खेत में डालते हैं। इस देश और दुनिया में कितने 100 फैक्ट्रियां हैं जो प्रदूषण फैलाने का काम करती हैं। कितने आंकड़े हैं कि किसान दवाई छिड़कते हुए दवाई चढ़ने से ही मर जाते हैं। जो दवाई सूंघने से मार देती है वो भोजन के द्वारा आहार में जाएगी तो क्या करेगी, इसके दुष्परिणाम हमने सोचने चाहिए। तो ये पद्धति पर्यावरण की पूर्ण रक्षा करने में समर्थ है। ग्लोबल वार्मिंग से मुक्ति दिलाने का एक रास्ता है। 4, देसी गौ माता, जिसको आप गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, न पालते ना दूध पीते और गौ माता की हो जाएगी जय। तो ये स्थिति जो आज हमारी बनी है,
ये पद्धति देसी गाय पे आधारित है, तो इससे गाय का संवर्धन होगा, गाय का अपने आप पालन होगा। और मजे की बात एक है, जो गाय दूध नहीं देती वो पालेकर विधि में दूध देने वाली से ज्यादा कामयाब है। क्यों? क्योंकि उसके 1 ग्राम गोबर में दूध देने वाली में तो 300 करोड़ जीवाणु हैं, लेकिन जो दूध नहीं देती उसमें वो जीवाणु 500 करोड़ तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी जो दूध में लगती है वो गोबर गोमूत्र की गुणवत्ता बढ़ाने में लग जाती है। तो ये जो बेचारी सड़कों पे घूमती हैं, इन सब का कल्याण वो हमारी जरूरत बन जाएगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान इस पद्धति से हो सकता है। और छठा, 5वां इसका, अस्पताल भरे पड़े हैं। कितने अस्पताल हम बनाते जा रहे हैं, कितनी डॉक्टरों की टीम्स हैं, लेकिन फिर भी बीमार काबू में नहीं आ रहे, भरे पड़े अस्पताल। आप सबसे मैं पूछता हूं, जब रासायनिक खेती धरती पे नहीं थी, कैंसर को कौन जानता था? हार्ट अटैक को कौन जानता था? डायबिटीज को कौन जानता था? ऐसे ऐसे असाध्य रोग प्रकट होके आ रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण दूध शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं, खाना पीना शुद्ध नहीं, सब जहर अंदर हमारे जा रहा है, और उसका परिणाम हम अनेक बीमारियों से ग्रस्त हैं। सरकारें करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही हैं, इतना प्रयास चल रहा है, और जो व्यक्ति बीमारी में खटिया पे पड़ता है वो भी दुखी, और उसको देखने में कितना समय बर्बाद होता है, कितना विकास बंद होता है, इसका पूरा ध्यान लगाओ तो कितनी बड़ी बचत का रास्ता है। और अंतिम इस खेती का लाभ किसान की आय, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसान की आय डबल हो, इससे डबल क्यों होगी? क्योंकि लागत शून्य आ जाएगी। अब मैं आपसे अंतिम बात, एक तरफ रासायनिक आहार रखा हुआ है, फल साग सब्जियां, और दूसरी तरफ प्राकृतिक वाला रखा है। डॉक्टर कहेगा उससे तो कैंसर होगा और इस वाले से स्वास्थ्य मिलेगा, तो कीमत लेकिन दुगनी है दूसरे वाले की, तो आप कौन सा खरीदोगे? कैंसर करने वाला खरीदोगे या दुगने रेट पे कैंसर ना करने वाला खरीदोगे? ना करने वाला ही खरीदेंगे ना। तो इससे आपकी लागत शून्य आएगी, तो 50 पैसा तो लाभ वही हो गया। इसके उत्पादन का रेट इतना मिलता, मेरे खेत में मेरी स्थिति क्या है? मेरी स्थिति क्या है? 4000 रुपए क्विंटल मेरा गेहूं बिकता है। 3 महीने पहले मेरे अकाउंट में लोग पैसे डालना शुरू कर देते हैं, कभी बाद में ना मिले, ये चिंता होती लोगों को। वहां गेहूं दाल सब्जियां लाइन लग के बिकती हैं, लाइन लग के। लोग कैंसर से कोई नहीं मरना चाहता, सब अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं। तो मेरे किसान भाइयों और मेरी आदरणीय सरकार, मैं आप सबको आज बधाई देता हूं, और विशेष करके मैं पुनः अंतिम माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार के मंत्री परिषद के लोगों को, कि जिन्होंने किसान के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए आज अपनी कैबिनेट की मीटिंग भी रद्द कर दी, इस काम को इतना महत्व दिया है। मैं इनको बार बार बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस मिशन को हमने पूरे प्रदेश में बढ़ाना है। पालेकर जी के शिविर लगेंगे, उन शिविरों के माध्यम से हम ट्रेनिंग देंगे, कैसे कैसे किसानों को लाभ हुआ, कैसे कैसे हिमाचल में हमने काम किया। इस बैठक के बाद जो दूसरी बात दोपहर की बैठक है, आप किसानों के अनुभव भी सुने, और हिमाचल प्रदेश से आए डॉक्टर साहब के भी किस ढंग से हिमाचल प्रदेश में एक जन आंदोलन बना दिया प्राकृतिक कृषि का, इसको भी जरूर जानें। आप सब ने समय बहुत होने के बावजूद मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद।